Yes. So, good morning, all of you. Let us start with our today's lecture. So, I hope this white screen is visible to everyone. All of you can see this white screen. Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay, fine. So, first, our topic name of the topic is sectional orthographic. Okay, sectional ortho. O-R-T-H-O, ortho. Sectional orthographic. Okay. So sectional orthographic means what? If you have something, some kind of machine or something is there, okay, and if you cut that machine into two halves, so what will it look like? Okay. So let us draw one figure first. Okay. I will draw one figure for you first. Okay, so this is the figure given to you, and here there is a circle. Okay, and here there is a circular hole. Okay, so now the distances are given. Okay, length of this is given as from here till here. Length is given as 120. Okay, here this height is also given as 120. Okay, so length and height is given as 120, and this distance from here till here is given as 100. Okay, this is 100. Okay, now distance from here till here is, okay, this distance from here till here in green I am showing, this distance is given as 20. Okay, this is 20 and this is 20. Okay, so this distance, both the distances are given as 20. Okay, and here I will show one center line for you. This entire center line is passing like this.
Now this is our center line. Okay, ये पूरे फिगर के एग्जैक्टली सेंटर से पास हो रहा है. Okay, so we will show the center line like this. Okay, and now the figure here, it is given like this, that there is a cutting plane. It is shown like this, that here we are showing it like this, S. Okay, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से कट कर रहे हैं. ओके, and now this distance from here till here, it is given. Okay, this distance, thickness of this is given as 20 mm. Okay, and this height is also 20. Okay, okay, now 20 का है तो यहाँ तक 100 हो गया. Okay, so here one more axis line we will draw. Okay, so this is our one more axis line. Okay, देखो, so I hope till here it is clear. This 20 it is given. Okay, यहाँ पे 20 दिया हुआ है. This distance, okay, this height is not given. This height I will show. This height is given as 10. Okay, this height is 10. Okay, now this distance from here till here. Okay, this distance is given as 40. Sorry, 40, this is 50. Distance from here till here is 50. Okay, and distance again from here till here is given as 50. This is also 50. ठीक है. Okay, now diameter of this upper circle, okay, this phi is given as 30. Okay, and diameter of this circle, lower one, phi, is given as 40. Okay, so now these are the dimensions given to you. Okay, so now let us start with the figure. Now question is that, what is the question? Draw the question. क्या है आपका? Draw the front view. Okay, now observer is looking this figure from. क्या हो गया, बोलो, क्या बोल रहे हो? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा. व्हाट यू आर सेइंग? हेलो हेलो. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ा रहे हो? हाँ, सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक. ऑर्थोग्राफिक का नेक्स्ट पार्ट जो है,
आपका ऑर्थोग्राफी का एक सम आता है 15 मार्क्स का, उसके बाद नेक्स्ट एक और सम है जो 15 मार्क्स का आता है, दैट इज सेक्शनल ऑर्थोग्राफी। मतलब वही ऑब्जेक्ट को कट करने के बाद कैसा दिखेगा। ओके, तो दैट वी आर स्टडिंग टुडे। इज इट क्लियर? ओके ओके, तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, ड्रॉ दी फ्रंट व्यू। ओके, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ओके, and sectional side view of this figure. Okay, so this is the question to you. आया समझ में? आपका फ्रंट व्यू क्या है, देखो यहां से आपको दिया हुआ है, दिस इज द ऑब्जर्वर इज लुकिंग द फिगर फ्रॉम दिस साइड। ओके, so this is your x given. Okay, so now let us start with our orthographic figure. चलो, तो सब what is the starting way, how we start कैसे करते बोलो? सबसे पहले फिगर का लेंथ, यस, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ओके, सो लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो फ्रंट व्यू में जब जहां से x लिखा हुआ है तो ये अपना फ्रंट व्यू हो गया, करेक्ट। तो अभी ऑब्जर्वर यहां से देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट लेंथ हो गया, तो लेंथ कितना हो गया ऑब्जेक्ट का बोलो? लेंथ आपको 100, लेंथ 100 है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का विड्थ कितना है? ये 120 विड्थ है, देखो ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का विड्थ कितना है? 120। और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है? देखो ऑब्जेक्ट का हाइट 120, height is 120. Okay, so initially what you will do with the help of projection line, okay, आप पहला प्रोजेक्शन लाइन सिलेक्ट करो एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन लाइन यू ड्रॉ अ लाइट रेक्टेंगल। अभी फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगा? लेंथ दिखेगा, ओके, और हाइट दिखेगा। ये दोनों किस में दिखेगा आपको? फ्रंट व्यू में दिखेगा, यस और नो? करेक्ट। सो आई विल ड्रॉ वन लाइट, very light, with the help of projection lines. Okay, one light rectangle I will draw. देखो, तो ये रेक्टेंगल मैंने कितने बाई कितने का बनाया बोलो? ये लेंथ कितने का बना हो गया? ये आपका 100 हो गया, और ये हाइट आपका कितना हो गया? 120 हो गया। इज इट क्लियर? ओके, सबसे पहले आप ये बना लो। ओके, ठीक है। सो 120/100 का सबने बनाया बोलो? Yes, sir. Okay, so I will make this figure first. 120/100 का rectangle I have drawn. Okay, so this height is 120. इसके बाद क्या करेंगे? What is the next step? Please tell me. बोलो, मैंने आपको बताया था क्या करने का नेक्स्ट स्टेप। ड्रॉ दी एक्सिस लाइन फर्स्ट। ये 100 का हाफ कितना दिया है? 100 अगर है, इसका सेंटर लाइन से जा रहा है तो ये कितना रहेगा? हाफ 50 रहेगा। तो 50 पे आप क्या करोगे? सबसे पहला सेंटर लाइन बना लोगे। सो आई विल ड्रॉ वन सेंटर लाइन। ओके, एक सेंटर लाइन बनाओ। कलर इज नॉट चेंजिंग। Okay, so I will make a center line at a distance of 50 mm. Okay, exactly हाफ पे आप क्या करो? ये बना लो। ओके, सो दिस इज अवर नेक्स्ट स्टेप इज ओवर। अच्छा, इसके बाद में आपको फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखेगा? ये पोर्शन दिखेगा, देखो ये जो दिख रहा है ऐसा टी जैसा। ओके, सो व्हाट वी विल डू, फ्रॉम दिस एंड वी विल स्टार्ट। ओके, यहाँ पे ये एंड से आप स्टार्ट करो। ओके, सो लिटिल बिट ऑफ थिक लाइन। ये कितने का रहेगा पहला बोलो? यहाँ से ये कॉर्नर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से? 20.
ये पहला 20 का मैंने बनाया, ओके। देन 20 के बाद में हम लोग को ये सीधा ऐसा दिखेगा, देखो बराबर है, बोलो। फिर ऐसा दिखेगा फ्रंट व्यू में, करेक्ट। फिर यहाँ से अंदर कितना जाएंगे, 20 जाएंगे, 20 करेक्ट। अंदर 20 गया मैं। फिर यहाँ से ऊपर कितना जाएंगे, 10 जाने का, ऊपर 10 जाओ। सेंटर लाइन कितने डिस्टेंस पर है? सेंटर लाइन 50 mm 50 mm के डिस्टेंस पे ना। टोटल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 100 है, देखो। तो 100 का हाफ करो, तो 100 का हाफ करेंगे तो एग्जैक्टली 50 पे आपको सेंटर लाइन बनाना है, समझे? ओके। तो अभी मैंने ये डिस्टेंस कितना लिया, बोलो जरा। ये डिस्टेंस यहाँ से पहला ऊपर गया, ये 20 लिया मैंने ऊपर, फिर यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया, ओके। एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 20, यहाँ से यहाँ तक 20 गया, ऊपर 10 लिया यहाँ से, ओके। एंड देन सेम ईयर ऑल्सो, यहाँ पे भी आप 20 ले लो पहला, ओके। पहला हम लोग ने 20 ले लिया इधर। आफ्टर दिस आई विल ड्रॉ 10 mm का लाइन लाइक दिस, ओके। देन यू ज्वाइन इट, देखो। तो ये हम लोग का फ्रंट व्यू जो दिया है फिगर में, ओके। तो वैसा हो गया, फ्रंट व्यू हैव ड्रॉन, बराबर है, बोलो ओके है, आज समझ में आता। आफ्टर दिस, हाँ, आफ्टर दिस व्हाट यू कैन सी, देखो इसके बाद ये 20 के बाद नेक्स्ट फिगर यहाँ से शुरू हो रहा है, पूरा ऊपर तक रहेगा, बराबर है ना? mm तक ऊपर जाएंगे। हाँ, तो यहाँ से टोटल नेक्स्ट फिगर यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊपर तक रहेगा, ओके। सो यू विल ड्रॉ इट लाइक दिस, देखो बराबर है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ तक एकदम सेम है जो हम लोग ने ऑर्थोग्राफिक में किया था ना, ऑल दिस स्टेप्स आर एग्जैक्टली सेम, ओके। सो आई विल ड्रॉ दिस पार्ट लाइक दिस, ओके। देखो ये पार्ट भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, ओके। तो जस्ट मैंने पहला ये फिगर बनाया 20 mm का, 20 mm के बाद नेक्स्ट ऊपर कितना जाना है हम लोग को, 100 mm जाना है। तो यहाँ से आपने 100 का लाइन मारा है, कंप्लीट किया रेक्टेंगल, ओके। तो ये पूरा पोर्शन हम लोग को दिखेगा। अभी इसके बाद क्या दिखेगा, ये सेंटर लाइन दिखेगा, बराबर है। तो ये सेंटर लाइन आप बना लो 50 mm के डिस्टेंस पे, ओके। सो हियर आई विल मेक अ सेंटर लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, 50 mm। यहाँ से एग्जैक्टली 50 mm के डिस्टेंस पे आई विल ड्रॉ दी सेंटर लाइन, ओके। ये 50 mm के डिस्टेंस पे बनाया, देखो मैंने। इज इट ओके, बोलो। देखो ये स्टेप बाय स्टेप ऐसा जाने का कभी भी ऑर्थोग्राफिक के प्रॉब्लम में। सबसे पहला मैंने क्या किया, लेंथ विड्थ और हाइट से बॉक्स बना लिया, उसके बाद एंड से चालू करने का, एक कॉर्नर से स्टार्ट किया, ओके। उसके पहले हम लोग ने क्या किया, सेंटर मार्क कर लिया फिगर का, सेंटर लाइन से फिगर को डिवाइड कर लिया, जो भी क्वेश्चन में सेंटर लाइन दिया हुआ है आपको, ओके। इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन? ओके, देखो फिर आगे देखते हैं। अभी आपको सर्कल दिखेगा फ्रंट व्यू में, तो ये सर्कल बना लो। कितने mm का सर्कल है, बोलो। 30 mm डायमीटर का दिया हुआ सर्कल, ओके। सो with radius 15 mm, draw a circle of diameter 30 mm, okay। so it will look like this, ठीक है। तो ये हम लोग का फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। देन आई हैव टोल्ड यू टू टेक अ डिस्टेंस ऑफ 10 mm। यहाँ से 10 mm का डिस्टेंस लो, ओके। एक्स वाई लाइन बना लो 10 mm के डिस्टेंस पे, ओके। एक 10 mm का डिस्टेंस, ड्रॉ वन एक्स वाई लाइन, ओके। यहाँ से भी 10 mm का डिस्टेंस ले लो, ड्रॉ वन एक्स वाई लाइन हियर ऑल्सो, ओके। क्लियर, इट इज ओके ना, बोलो। तो दोनों तरफ मैंने 10 and 10 10 10 का डिस्टेंस छोड़ के आई हैव ड्रॉन दी एक्स वाई लाइन, ओके। नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, यू प्रोजेक्ट द फिगर फ्रॉम हियर, ओके। यहाँ से प्रोजेक्ट करो इस फिगर को नीचे, ओके। एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो यू प्रोजेक्ट द फिगर, ठीक है। ये एक्स को मैं रब कर रहा हूँ अभी,
this work is done. Okay, so from top we will project the figure like this. Yes or no? इसको प्रोजेक्ट कर लिया और इसको प्रोजेक्ट कर लिया. ओके, आफ्टर प्रोजेक्टिंग, यस, आफ्टर प्रोजेक्टिंग व्हाट यू विल डू, बोलो. यहां से 10 mm का डिस्टेंस छोड़ने का एक्स वाई लाइन से एंड ड्रॉ दी नेक्स्ट फिगर. ये बॉक्स बनाओ. देखो यहां से मैंने 10 mm का डिस्टेंस छोड़ा एक्स वाई लाइन से. ओके, एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, बोलो. यहां से अभी टॉप व्यू में क्या दिखेगा आपको, हाइट नहीं दिखेगा, तो क्या दिखेगा टॉप व्यू में आपको, लेंथ दिखेगा एंड विड्थ दिखेगा. बराबर है. तो ऑलरेडी लेंथ आपके पास है. देखो ये लेंथ कितना था आपका, 100 था ना. लेंथ ऑलरेडी है आपके पास, ये 100 है. तो आपको क्या करना है, 120 का विड्थ बनाना है. तो यहां से आप 120 mm जाओ नीचे. आया समझ में आपको, बोलो. इज इट क्लियर, बोलो. तो मैंने यहाँ से 120 mm का विड्थ बनाया, इधर से सीधा सीधा नीचे गया, 120 mm मार्क किया एंड वी हैव कंप्लीटेड द रेक्टेंगल. देखो यहाँ तक हो गया क्या, बोलो. डिड यू कंप्लीट टिल हियर और नॉट, यू प्लीज टेल मी. किया ना. एक काम करेंगे, ये सर्कल का जो डायमीटर मैंने 40 लिया है ना, इसको 40 मत लो, इसका डायमीटर आप 30 रखो. ठीक है, ये डायमीटर वी विल टेक इट एज 30 सर्कल का. ओके, so now what we will do, बोलो. how to start the figure. अभी आप जब भी टॉप से देख रहे हो तो आप ये वाले कॉर्नर से स्टार्ट करो. ये वाले कॉर्नर से आपको ये ऊपर वाला पार्ट दिखेगा पहले. करेक्ट. सो फ्रॉम हियर वी विल टेक अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm. यहाँ पे से 20 mm मार्क करो. ओके, एंड देन यू कंप्लीट द रेक्टेंगल फर्स्ट. यहाँ से यहाँ तक आप वो रेक्टेंगल कंप्लीट करो. ओके, विद डार्क लाइन विल ड्रॉ. ओके, देखो ये ऊपर वाला रेक्टेंगल सबसे पहला बनाया मैंने. देखो ये पार्ट अपने को दिख रहा है ना, जो मैंने हैचिंग में बनाया. देखो, इज इट क्लियर और नॉट, बोलो. दिस पार्ट आई होप यू कैन सी फ्रॉम द टॉप. करेक्ट. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट इज योर नेक्स्ट रेक्टेंगल. देखो ये वाला रेक्टेंगल है. देखो नेक्स्ट पार्ट आपका, ये भी आपको दिखेगा ऊपर से. ओके, so this is the next part, the next rectangle which you can see. आया समझ में, बोलो. कौन सा वाला बनाया मैंने, ये वाला पार्ट बनाया अभी. ओके, दिस पार्ट यू कैन सी ना फ्रॉम द टॉप नाउ. तो ये पार्ट मैंने बनाया नेक्स्ट. ओके, तो पहला ये वाला पोर्शन 20 mm, यहाँ से 20 लिया, 20 के आगे फिर मैंने ये पूरा ये रेक्टेंगल कंप्लीट किया. ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, हमेशा क्या करने का, ऊपर से ये सेंटर लाइन को प्रोजेक्ट कर लो आप नीचे. ऊपर से जो सेंटर लाइन आपने बनाया हुआ है. ओके, जस्ट प्रोजेक्ट द सेंटर लाइन हियर आल्सो. ओके, तो आई विल जस्ट प्रोजेक्ट द सेंटर लाइन फ्रॉम द टॉप. ओके, सो योर फिगर विल लुक लाइक दिस समवॉट. देखो, सो टिल हियर आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, अच्छा, इसके बाद में ये जो सेंटर लाइन है, देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे खत्म हुआ. यहाँ से कितना, ये 50 mm का डिस्टेंस है. मतलब ये पोर्शन से 50 mm के डिस्टेंस पे दूसरा सेंटर लाइन आएगा. यस और नो, बोलो. ये वाले कॉर्नर से, ये देखो ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे. ओके, तो ये वाला कॉर्नर इधर है. तो यहाँ से आपको अभी क्या करना पड़ेगा, 50 mm के डिस्टेंस पे दूसरा एक और सेंटर लाइन बनाना पड़ेगा. yes or no, is it clear or not, बोलो. correct. so we have drawn the next center line at a distance of कितना, बोलो, 50 mm.
ओके, फ्रॉम ईयर, यहाँ से 50 mm का डिस्टेंस लिया है मैंने, फ्रॉम ईयर टिल ईयर डिस्टेंस इज 50, 50। ईयर टिल ईयर इट इज ओके और नॉट, बोलो ये बराबर है, बोलो यहाँ तक ओके है, कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आया ऐसा, बोलो। नो सर। ओके चलो, ये भी हो गया। अभी टॉप व्यू में आपको ये सर्कल दिखेगा, नीचे वाला ये सर्कल दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलो जरा, ये सर्कल दिखेगा, हाँ दिखेगा। तो 30 mm का विथ विथ टेक डायमीटर एज हाउ मच, 30, तो रेडियस 15 का आप क्या करो, एक सर्कल बना लो यहाँ पे, ओके। इन द टॉप यू ड्रॉ वन सर्कल लाइक दिस, ओके। ऑफ रेडियस कितना बनाओगे, 15 का लेके सर्कल बनाओ, इसको सेंटर रखो, सर्कल बना लो, ठीक है। बोलो, क्लियर, इट इज ओके, एनी डाउट? नो ना, यस और नो, बोलो। नो सर। Okay, so after drawing till here, okay, now is your top view and front view complete or anything is missing in this? Please tell, let me know. Yes, correct, देखो आपने बराबर बोला, ये जो सर्कल है ऊपर वाला, ठीक है, तो ये जो सर्कल है इसको हम लोग नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, ओके। तो इसको नीचे प्रोजेक्ट करो, ये सर्कल को देखो, ओके, प्रोजेक्ट दिस सर्कल फ्रॉम हियर, यहाँ से इसको नीचे प्रोजेक्ट किया, देखो यहाँ पे। तो ये सर्कल का, ये सर्कल जब आप ऊपर से देख रहे हो तो ये सर्कल आपको नहीं दिखेगा, करेक्ट। तो ये सर्कल को मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, देखो यहाँ पे, ओके। सो यू केम टू नो दैट यू नो हियर यू विल गेट अ हिडन लाइन फॉर दिस सर्कल, यस और नो, बोलो, करेक्ट। सो यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा ये सर्कल का, देखो 1 मिनट है, इसको मैंने प्रोजेक्ट किया यहाँ पे, ओके, और इसको भी प्रोजेक्ट किया इधर से नीचे, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सर्कल का मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो मैं ग्रीन में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो यहाँ पे से यहाँ तक इसका प्रोजेक्शन लाइन रहेगा, सॉरी इसको थोड़ा ठीक बना देते हैं, ठीक है। ये ग्रीन में जो मैंने बनाया ये आपका सर्कल का, ऊपर वाले सर्कल का प्रोजेक्शन है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, बोलो, इसका हिडन लाइन रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो। जो ऊपर वाला सर्कल जो है, जब हम लोग टॉप व्यू में देख रहे हैं, मतलब कैसा मालूम है, ये जो सर्कल है जो आपको सामने दिख रहा है, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो सर्कल आपको कौन से व्यू में दिख रहा है, फ्रंट व्यू में दिख रहा है, ठीक है। बट आप जब भी इसको यस सर। ऊपर से देख रहे हो तो ये सर्कल आपको नहीं दिखेगा, बराबर है। और अभी हम लोग ये सर्कल की बात कर रहे हैं, देखो ये सर्कल जो है जब आप सामने से देख रहे हो ये सर्कल को, तो ये सर्कल आपको दिखेगा क्या, फ्रंट व्यू में नहीं दिखेगा ना, सर्कुलर होल, बराबर है ना। तो ये सर्कल Yes, जो sir. फ्रंट, जो टॉप व्यू में दिख रहा है, ये सर्कल फ्रंट व्यू में नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सर्कल का आपको प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये नीचे वाला जो सर्कल है इसको ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। ये प्रोजेक्शन लाइन से नीचे वाले सर्कल को ऊपर प्रोजेक्ट करते, तो यहाँ पे देखो ये रेड कलर का जो लाइन दिख रहा है आपको, रेड कलर का प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन लाइन रेड कलर का इसलिए मैंने लिया ताकि you will come to know that where you are having the projection, देखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, एंड यहाँ फ्रॉम ईयर टिल ईयर, ओके, यू आर हैविंग अ हिडन लाइन, दिस रेड कलर लाइन इज योर हिडन लाइन। तो यहाँ पे मैंने इसको हिडन लाइन बना दिया, देखो आया समझ में आपको, ये क्लियर हो गया, बोलो। तो ये नीचे वाला सर्कल का फ्रंट व्यू में हिडन लाइन ऐसे आएगा, इज इट क्लियर और नॉट, बोलो। यस सर। ये आपको समझा, समझा कि नहीं समझा, बोलो।
अच्छा, अभी अगर आप देखते हो जहां पे भी कॉर्नर देखो शार्प एजेस रहता है ना, वहां पे डार्क लाइन रहेगा। देखो ये जो है ना, ऐसा यहाँ से ये पूरा थ्रू आउट ऐसा एक रेड कलर का जो मैं बना रहा हूँ, ये ऐसा डार्क एज रहेगा। देखो ऐसा यहाँ से है ना पीछे तक पूरा क्या रहेगा, ऐसा एज रहेगा। डू यू एग्री दिस और नॉट? तो ये जो एज है, जब भी आप ऊपर से देखते हो तो ये एज आपको दिखेगा क्या, जो रेड कलर का लाइन मैंने बताया, शार्प एज, तो ये आपको दिखेगा क्या जब भी आप ऊपर से देखोगे फिगर को? यहाँ पे जो एज बन रहा है ना, ऐसा बैक बैक साइड में एक एजेस जा रहा है, देखो ऐसा ऐसा थ्रू आउट पीछे तक जाएगा, बराबर है। तो ये एज आपको दिखेगा क्या जब भी आप ऊपर से देखोगे फिगर को? नहीं दिखेगा ना? नो सर। करेक्ट। तो फिर क्या करेंगे, इसका एच का प्रोजेक्शन कहाँ से लेंगे फिर बताओ जरा। ये देखो, ये जो फ्रंट व्यू है, यहाँ पे आपने फ्रंट व्यू बनाया, इसको इधर नीचे प्रोजेक्ट करो। देखो ऐसा, देखो यहाँ से मैंने फ्रंट व्यू को प्रोजेक्ट किया। ओके, ये रेड कलर का लाइन दिख रहा है आपको, और यहाँ से देखो फ्रंट व्यू को मैंने नीचे प्रोजेक्ट किया। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे जो है ये एज के वजह से, जो ये एज आप ऊपर से देख रहे हैं आपको नहीं दिख रहा है, बट ये एज थ्रू आउट है, तो इसके वजह से आपका क्या आएगा, ये जो पोर्शन है देखो अभी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, थ्रू आउट, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कैसा है, ये आपका एज का प्रोजेक्शन है। तो ये दोनों रेड कलर में जो मैंने बनाया, ये आपका हिडन लाइन रहेगा। ओके, ये मैंने रेड में क्यों बनाया, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। ओके, यू ड्रॉ इट विद ब्लैक पेंसिल ओनली, नॉर्मल। ओके, just for your clear understanding I have drawn this thing in red color. Okay, is it clear to you? बोलो। तो ये हिडन लाइन कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये आपको समझा? तो जहां पे एज रहता है, जहां पे भी कॉर्नर रहता है ना, याद रखना वहां पे क्या आता है, हिडन लाइन आता है। ओके, जो आपको नॉर्मल व्यू में नहीं दिखेगा। देखो अभी जैसा ये मैंने थ्रू आउट बनाया, ये क्यों बनाया, ऊपर से प्रोजेक्ट किया, देखो एज को मैंने। आया समझ में आपको? बोलो, ये क्लियर हो गया एकदम कॉन्सेप्ट? कुछ भी डाउट है यहाँ पे? बोलो। नो सर। नो ना? ओके, वेरी गुड। फिर आगे क्या करोगे बोलो? 45 डिग्रीज का एंगल ले लो, हम यहाँ से 45 डिग्रीज का एंगल ले लो। ओके, आफ्टर टेकिंग दिस 45 डिग्री का एंगल, यू प्रोजेक्ट दिस फिगर। ओके, साइड व्यू के लिए इसको प्रोजेक्ट करना है। सो देखो, पहला यहाँ से प्रोजेक्ट करो, एंड से पहला प्रोजेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ से प्रोजेक्ट करो, यहाँ से ऊपर प्रोजेक्ट करके छोड़ दो। ओके, then from here you project it. Okay, and from here till here you project it. Okay, from here you project and leave it. Okay, और यहाँ से प्रोजेक्ट करके छोड़ दो। देखो हम लोग का और ऑटोमेटिकली जो साइड व्यू कितने के अंदर आएगा, ये हम लोग को मिल गया डायमेंशन। डायरेक्ट साइड टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को प्रोजेक्ट किया तो साइड व्यू मिल गया। देखो अभी यहाँ से आप इसको प्रोजेक्ट करो, ठीक है, ये वाला पोर्शन को प्रोजेक्ट कर दिया मैंने। ओके, और यहाँ से आप प्रोजेक्ट करो, देखो। ओके, देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया। आया समझ में? बोलो, एनी डाउट? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो ना? देखो, सो इन दिस साइड व्यू
फर्स्ट यू कैन सी दिस एल शेप, ओके। आपको ये पूरा एल शेप दिखेगा कि नहीं, बोलो, ये पूरा। Yes, sir. करेक्ट, यू कैन सी दिस एल शेप लाइक दिस इन द साइड व्यू। तो ये हम लोग सबसे पहला बना लेंगे एल शेप। ओके, तो ये एल शेप अगर आप देखते हो, देखो यहाँ पे ये एक्चुअली एल शेप ये वाला है, आया समझ में? तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ओके, तो let us draw this thing first, dark line. So you can see the L shape like this. Okay, okay, okay. So till here we have completed. Now what is your next step? I have told you always draw, extend your axis line. Okay, यहाँ से जो भी एक्सिस लाइन आपने बनाया था, मैंने इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया। ओके, और ये एक्सिस लाइन को आप बनाओ ऐसा। ओके, ये एक्सिस लाइन को मैंने यहाँ से एक्सटेंड प्रोजेक्ट किया इन दी साइड व्यू। ओके, ये वाले एक्सिस लाइन को भी आप प्रोजेक्ट कर लो। सी वंस यू प्रोजेक्ट दी एक्सिस ना, योर हाफ ऑफ द वर्क इज डन। आपका प्रॉब्लम इजी हो जाएगा, फिर यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टीज। ओके, तो ये आपका मेन एम होना चाहिए, दैट यू नो यू शुड ऑलवेज मार्क दी एक्सिस फर्स्ट। सेंटर लाइन आप मार्क कर लो, सेंटर लाइन कहाँ पे है इसका। एक बार सेंटर लाइन मार्क कर लिया तो आपका half of the problem is getting over there only. Okay, ओके, एक्सिस सेंटर लाइन मार्क कर दिया। अभी क्या करोगे, बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? इसको आप प्रोजेक्ट करोगे यहाँ पे ऐसा, करेक्ट? प्रोजेक्शन लाइन से प्रोजेक्ट करो जल्दी से। यहाँ से सर्कल को प्रोजेक्ट कर दिया दोनों तरफ, इधर से भी प्रोजेक्ट करो ये सर्कल को। देखो कितना सिंपल है, देखो जस्ट प्रोजेक्ट करो, प्रोजेक्शन से ही आपको आधे से ज्यादा चीजें मिल जाता है। देखो, जस्ट गो विद द बेसिक्स वॉट एवर आई हैव टॉट यू। ओके, तो यहाँ से प्रोजेक्ट करो सर्कल को, देखो तो सर्कल को प्रोजेक्शन से हम लोग को मिल जाएगा ये। देखो आया कि नहीं, बोलो यस और नो, प्लीज टेल मी। सो इफ यू सी हियर, ओके, देखो ये रेड कलर में मैंने जो बनाया, ओके, तो ये आपका सेंटर लाइन, सॉरी सेंटर लाइन क्या बोल रहा हूँ, ये आपका हिडन लाइन हो गया। देखो यहाँ पे और यहाँ पे हिडन लाइन हो गया। ओके, और यहाँ से यहाँ तक आपका हिडन लाइन हो गया। करेक्ट है कि नहीं, बोलो आया समझ में? देखो कोई भी डायमेंशन का जरूरत नहीं, जस्ट प्रोजेक्ट करना है आपको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू से, तो ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट फिगर आ गया। देखो, ओके, सो आई विल मार्क दिस एज द हिडन लाइन। ये अपना हिडन लाइन है, ठीक है, आया समझ में? अच्छा देखो, ये हिडन लाइन मार्क करने के बाद में वंस यू नो यू सी दैट देयर इज अ स्लॉट। देखो आप जब यहाँ से देखते हो, आपको मालूम पड़ा कि यहाँ पे एक स्लॉट है, ऐसा ये स्लॉट है ना, ऐसा जा रहा है, ये थ्रू आउट स्लॉट है पूरा, ऐसा बैक साइड तक है पूरा ये स्लॉट। ओके, तो ये स्लॉट की वजह से क्या होगा, जब भी आप प्रोजेक्ट करोगे इसको, ओके, यहाँ से जब भी आप प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ से यहाँ तक आपका स्लॉट रहेगा ना, ये पूरा आपका स्लॉट रहेगा, ये जो मैंने प्रोजेक्शन लाइन से बनाया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्लॉट है ये पूरा पीछे साइड तक जा रहा है जो ऐसा, ये आपको दिख नहीं रहा है। जब भी आप साइड व्यू से देख रहे हो, ये स्लॉट आपको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना, बोलो डू यू एग्री इट और नॉट? कैन यू सी दिस No, स्लॉट? sir. You can't see the No, slot. sir. Okay, so from here till here, okay, in this view from here till here,
ओके, यू कैन नॉट, देयर इज अ स्लॉट जो मैंने रेड में बनाया। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस यू विल गेट अ हिडन लाइन। देखो, तो अगर ये स्लॉट रहेगा तो ऑब्वियसली नीचे सर्कल का ये पार्ट आएगा ही नहीं, है ना। ये स्लॉट हो गया मतलब ये इतना ही है ना, नीचे गैप है, इधर आएगा ही नहीं, आपका सर्कल इधर ही खत्म हो गया, मतलब आया समझ में। और ये हिडन लाइन आपका यहाँ पे ऐसा दिखेगा, देखो देखो, एग्रीड और नॉट बोलो। बोलो, बराबर है ये। तो आपका सर्कल एक्चुअली इधर तक ही है, नीचे तक नहीं आएगा वो, क्योंकि नीचे वो पूरा गैप है ना, ये 10 mm के बाद गैप है ना नीचे, तो सर्कल आएगा ही नहीं ना उसके नीचे। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ। यस सर। तो ये यहाँ तक ही आएगा, तो ये आपका साइड व्यू देखो ऐसा बन रहा है, देखो ये फिगर का। ठीक है, तो अभी यहाँ तक तो नॉर्मल, ये यहाँ तक जो भी हम लोग ने किया ये नॉर्मल कॉमन ऑर्थोग्राफिक का था। अभी हम लोग इसके आगे सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक का देखेंगे कि अगर इसको काटा हम लोग ने ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये जो एस एस करके दिखा, मतलब ये इतना पोर्शन हम लोग ने रिमूव कर दिया, हाफ पोर्शन, तो रिमूव करने के बाद कैसे दिखेगा। तो ये अभी देखो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये वाले पोर्शन को। ठीक है, देखो यहाँ से रिमूव कर दिया मैंने इसको। रिमूव करने के बाद ये कैसा दिखता है देखेंगे। ये पूरा आधा पोर्शन रिमूव कर दिया मैंने ऑब्जेक्ट का। एक्स के आगे जिस तरह से वो पार्ट रिमूव करेंगे। पूरा पूरा काट दिया ऑब्जेक्ट को मैंने, हाफ करके कट कर दिया पूरा। आया समझ में। ये पूरा ऑब्जेक्ट को मैंने आधा काट दिया, तो काटने के बाद कैसा दिखेगा वो देखेंगे। देखो, ये पूरा काट दिया मैंने आधा, हाफ कर दिया, सेंटर लाइन से पूरा ऑब्जेक्ट को हाफ कर दिया। देखो देखो, पूरा ऑब्जेक्ट को कट कर दिया मैंने। जहां जहां से सेंटर लाइन जा रहा है ना, आया समझ में, वहां वहां से पूरा ऑब्जेक्ट को कट कर दिया मैंने। तो ये काटने के बाद में ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, वी विल ड्रॉ दैट फिगर, आई विल ड्रॉ दैट फिगर फॉर यू, that after cutting how this object will look like. Okay, देखो अभी ये कट करने के बाद में देखो, जिधर जिधर से सेंटर लाइन जा रहा था ना, मैंने उधर उधर से पूरे ऑब्जेक्ट को कट किया। आपने नोटिस किया ये, जहां जहां से सेंटर लाइन जा रहा था देखो, वहां से मैंने पूरा ऑब्जेक्ट को कट किया।
ओके देखो ये ऑब्जेक्ट आफ्टर कटिंग, ओके अभी आफ्टर कटिंग जब हम लोग ये ऑब्जेक्ट को कट कर रहे हैं तो ये जो पार्ट है देखो ये सेक्शन में दिख रहा है, देखो दिस इज द सेक्शनल व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। देखो यस प्लीज टेल इट इज डू यू इट इज करेक्ट और नॉट, बोलो। ये कटने के बाद में ये ऑब्जेक्ट देखो एकदम हाफ से कट किया ना मैंने ऑब्जेक्ट को, तो ऐसा दिखेगा कि नहीं। देखो ये पार्ट जो है हैचिंग में जहां से कट हो गया ना, तो वो पार्ट हम लोग हैचिंग में दिखाते हैं, मतलब सेक्शन में दिखाते हैं ऐसा 45 डिग्रीज का हैचिंग लाइन बनाने का। ओके तो ये मैं आपको 3D में बता रहा हूँ, ये आपको 2D में बनाना है। देखो यहाँ पे जो है सर्कल आपको ऐसा दिखेगा, ये जो है ये आपको ऐसा नहीं दिखेगा। ओके yes please tell it is clear to you। Yes, sir. hello okay fine very good। so now I have drawn the hatching part, see after cutting the object now I have drawn how it will look like। now you tell me that in this figure what are the changes which we will get। देखो आपको क्या चेंजेस मिलेगा, जैसा ये देखो यहाँ पे एक प्रॉपर रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ये हम लोग को ये साइड व्यू में जब भी हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहे हैं बराबर है, सेक्शनल साइड व्यू। तो ये कौन सा है, राइट हैंड साइड व्यू है, बट बनेगा कौन से, सॉरी ये अपना लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, LHS है ना, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड व्यू है जो बन रहा किस तरफ है, राइट साइड में बन रहा है। ठीक है तो इसमें पहला पोर्शन देखो ये पोर्शन डार्क हो गया बराबर है सर्कल का, तो इसलिए यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, पहला यहाँ पे जो मैंने रेड में बनाया ये मैंने डार्क बना दिया देखो, तो ये हिडन लाइन क्या हो गया, डार्क लाइन हो गया। ये हिडन लाइन जो है ये क्या हो गया, ये वाला हिडन लाइन भी क्या हो गया, डार्क हो गया। देखो देखो ये हैचिंग में है ना, तो ये हिडन लाइन भी डार्क हो गया बराबर है। तो जो भी रेड कलर का मैंने लाइन बनाया था हिडन लाइन, ये दोनों हिडन लाइन डार्क हो गया। ओके और यहाँ पे देखो ये हैचिंग बन रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक ऐसा 45 डिग्रीज का हैचिंग लाइंस बनाओ देखो। okay so here I will show it like this hatching। okay and here also if you see देखो ये जो हिडन लाइन था यहाँ पे, जो भी हिडन लाइन है वो क्या हो गया, आफ्टर कटिंग इट हैज बिकम डार्क। ओके तो ये जो हिडन लाइन है कुछ डिफरेंस नहीं है, देखो जस्ट ये हिडन लाइन को हम लोग ने क्या कर दिया, डार्क कर दिया। देखो तो आफ्टर हैचिंग दिस हैचिंग लाइंस वॉट एवर इज देयर, ओके ये रेड कलर को मैंने क्या किया, देखो डार्क कर दिया, इसको भी मैंने डार्क कर दिया। देखो कंटिन्यूस लाइन में चेंज कर दिया, देखो इसको बराबर है कि नहीं, बोलो ये समझा आपको। देखो तो अभी इसमें क्या आएगा, हैचिंग कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये देखो ये हैचिंग में आएगा। देखो देखो एग्जैक्टली हम लोग ने क्या किया, इसको आधा कट कर दिया ऑब्जेक्ट को। है समझ में, बोलो सबको समझाइए। देखो ये देखो ये हैचिंग में ऐसा आ रहा है। देखो देखो ये 2D में हम लोग बना रहे हैं इसको। ओके ओके देखो तो हम लोग का सेक्शनल व्यू कंप्लीट हो गया है फिगर का। वी हैव कंप्लीटेड द सेक्शनल
साइड व्यू. इज इट क्लियर? बोलो, Yes. कुछ भी डाउट है किसी को? सर एक बार सेक्शनल साइड में एक्सप्लेन कीजिए सेंटर को डाल. क्या बोल रहे हो? सेक्शनल साइड में एक बार एक्सप्लेन कीजिए सर, आपको सेंटर को डाल. सेक्शनल साइड व्यू को एक्सप्लेन करूं? थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा आपका आवाज. क्या बोल रहे हो? वापस बोलो एक बार. हेलो. आप बोले ना हिडन लाइन को डार्क करना है. हाँ वो देखो explain अभी, कीजिए. हाँ वो देखो क्या हो गया, यहाँ पे ये हिडन था ना सर्कल, पहला दिख नहीं रहा था, लेकिन काटने के बाद में ये कैसे डार्क पूरा रेक्टेंगल दिख रहा है ना हम लोग को. देखो ये डार्क रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं आपको पूरा? तो ये जो भी हिडन था सर्कल का, हम लोग ने यहाँ पे हिडन लाइन किया था, तो हिडन को हम लोग ने क्या कर दिया, यहाँ पे डार्क कर दिया. यहाँ पे देखो रेड कलर का हिडन लाइन था ना सर्कल का, तो क्या हो गया, डार्क हो गया. देखो तो जो भी सर्कल जहाँ पे था, वहां पे जहाँ पे हिडन लाइन दिखा रहा था सर्कल का, तो अगर वहां से ये जा रहा है एक्सिस लाइन, जो सेंटर लाइन पास हो रहा था, देखो ना ये सेंटर लाइन में मैंने बताया था, मैंने आपको क्या बोला, जहां जहां से सेंटर लाइन आपका पास हो रहा है, ओके, तो वो सब पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा. समझे कि नहीं? तो अभी ये सेंटर लाइन किसको किसको टच करते हुए जा रहा था, सर्कल को टच करते हुए जा रहा था ना. तो जो जहां जहां पे सेंटर लाइन जो है ना, ठीक है, जो सेंटर लाइन जिधर जिधर से पास हो रहा है, और अगर वो सर्कल को टच करते हुए जा रहा है सेंटर लाइन, तो सर्कल का अगर हिडन रहेगा तो वो हिडन लाइन क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा. देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बोला, ये सेंटर लाइन यहाँ से पास हो रहा था, इधर से पास हो रहा था, तो ये सर्कल को टच करते हुए जा रहा था, तो इसलिए देखो सर्कल क्या हो गया, यहाँ पे डार्क हो गया. यहाँ पे भी देखो हिडन लाइन ये सर्कल को टच करते, सॉरी सेंटर लाइन ये सर्कल को टच करते हुए जा रहा था ना, पूरे ऑब्जेक्ट को आधा कट कर रहा था, ऐसा हाफ कट कर रहा था. तो इसके वजह से यहाँ पे भी जो हिडन लाइन था वो डार्क हो गया. देखो रेड कलर का मैंने लाइन बनाया था, वो क्या हो गया, डार्क हो गया. तो इधर भी डार्क हो गया. और ये जो है, ये देखो अभी ये यहाँ पे कैसा, ये ऑब्जेक्ट इतना आधा ही कट रहा था ना, इतना गैप है, नीचे कुछ है नहीं, तो इसके वजह से ये इतना नीचे का गैप हो गया, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक ही है. देखो ऐसा, तो इसलिए सेक्शनल व्यू जो है वो यहाँ तक ही आया. देखो आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? ये 3D फिगर मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सेक्शनल व्यू. ठीक है, देखो ये नीचे गैप किसका है, ये पोर्शन का. ये ऐसा स्ट्रेट लाइन किसका दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन इसका है. देखो ऐसा, ये जो कर्व पोर्शन है सर्कल का, ये जो कर्व पार्ट है, जब हम लोग सामने से देखेंगे तो ये अपने को स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ऐसा स्ट्रेट दिखेगा. ये जो भी कर्व पार्ट है, ये अपने को क्या दिखेगा, जब भी हम लोग सामने से देखते हुए ऑब्जेक्ट को ऐसा राइट साइड व्यू में दिखेंगे, देन इट विल अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. बोलो, डू यू एग्री दिस थिंग और नॉट? ओके, so all of you please complete this figure and let me know that you have completed this thing or not. Please tell me. Okay, yes please tell. कंप्लीट करो, पूरा फिगर कंप्लीट करो, और इसमें मिनिमम आपको 8 डायमेंशंस यू हैव टू गिव. ओके, मिनिमम 8 डायमेंशंस यू नीड टू गिव. Yes, I expect all of you that after completing this figure, okay, you send me a pic of this on my email ID. Already I have given you my email ID. Okay, so please send me the solution of this on my email. I want to see every one of you has drawn this or not. Okay, is it clear to everyone? Bolo. Yes, sir. Okay, so we'll stop the recording now. Now you can take a break.